अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Standard is a document established by consensus and approved by a recognized body that provides for common and repeated use rule, guidelines, or characteristics for activities and their result aimed at the achievement of optimum degree of order in a given context. The use of appropriate standard is both a familiar and traditional technique for regulating hazardous activities and attempting to ensure safety of product. One major problem is the rapid rate of change of technology. Design standards that mandate a particular method of design are frequent choice of safety standards, but they can have the effect of crystallizing the technology. Other design method which may arise from improvement in technology may not comply with the standard. Problem can be solved by rapidly occurring subsequent revisions. जो कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, वो जिस तरह बाकी इदारों के या बाकी टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके। अब एक जो स्टैंडर्ड की एग्जांपल है वो IEC 61508 है। IEC 61508 is an international standard published by the International Electronic Commission consisting of methods or on how to apply, design, deploy, maintain automatic protection system called safety related systems. It is recently adopted by software industry covering general requirements, software requirements, definitions, and examples of methods for determination of safety integrity level. Certification and licensing. Certification and licensing are also the example of regulation which can be applied to both product and practitioners. They can also be used in conjunction with standards as when a product is certified against a particular standard. The term certification and licensing are often used interchangeably, but strictly certification requires that either the product and the practitioner conforms to some specified standard, but there is no bar to the marketing of uncertified products or practicing of uncertified practitioners. A licensing requirement, on the other hand, means that the product cannot go on the market to all the practitioners A licensing requirement, on the other hand, means that the product cannot go on the market to
at all or practitioner operate unless the product is licensed or the practitioner is in possession of the requisite license. जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, यहाँ पे हमारे पास जो सर्टिफिकेशन की काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, जिस तरह नेटवर्क सर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद सर्च इंजन सर्टिफिकेट, यानी हमारे पास सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं जो एक लेवल ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो प्रोडक्ट हैं कि जी ये एंटीवायरस ये टेस्टेड एनवायरनमेंट में रन हुआ है, तो इस तरह प्रोडक्ट भी सर्टिफाइड होते हैं कि जी ये इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो जो स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेट या लाइसेंसिंग, ये दोनों बड़ी अहमियत रखते हैं क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस स्लाइड के अंदर ये बताया गया कि जो रेगुलेशन है उसके अंदर हमारे पास दो रेगुलेटरी मेथड्स हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करना और एक लाइसेंस इशू करना, ताकि हम क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सकें थ्रू प्रॉपर चेक एंड बैलेंस. Licensing is therefore a more severe form of certificate. Licensing is bound to have a restrictive effect on the market, but this is usually considered to be justified in safety related situation. आगे आ जाता है जी प्रोफेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस. It is common for professional association to devise code of practice with which to govern their members. The subject matter of such code may be general or more specific in nature, but in either case, they can perform a valuable regulatory function. Although they are a form of self-regulation which is not itself legally binding, they are capable of producing legal effect if incorporated into the term of contract. Failure to comply with the requirement of a code of practice may itself be evidence of negligence. The law also exerts a regulatory effect either directly or indirectly. There are two ways of direct application: by requiring compliance with other forms of regulation such as standards by licensing, by incorporating similar requirements into statute. Indirect application is by exerting a deterrent effect because of fear of litigation if safety standards are breached. Law is frequently reactive rather than preventive. Also, it is more concerned with providing a remedy after the event. Legal liability. Should software manufacturer be held strictly liable for software defects? ये जो क्वेश्चन है, ये पुरानी स्लाइड्स इतनी अहम नहीं थी जो अभी तक हमने पढ़ी, ये एक वैलिड क्वेश्चन है. जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके क्या उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट आए? सबसे पहला तो यहाँ पे एक बुनियादी सवाल है कि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट क्यों आता है. इसकी ये मिसाल है कि आप रिक्वायरमेंट्स लेने गए जी, एंड यूजर्स हैं, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी, आपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सॉफ्टवेयर बना दिया, उन्होंने जो जो कहा इस तरह सॉफ्टवेयर को काम करना चाहिए आपने बना दिया. अब वो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, लेकिन चलाते चलाते एक ऐसा सिनेरियो आया जो कि उन्होंने ना आपको पहले से बताया था ना आपने प्रोग्राम किया है, और उसमें डिफेक्ट आ गया. तो अब ये जो डिफेक्ट आया है ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सॉफ्टवेयर टीम की जिम्मेदारी है कि वो इसको ओन करें और इसका नुकसान भरें, कि ये जो कंपनी है जिसने रिक्वायरमेंट्स दी थी उन्होंने उनकी कोताही है, उन पे लाइबिलिटी आएगी? तो यहाँ पे दो थॉट्स एग्जिस्ट करती हैं, दो लोगों की सोच एग्जिस्ट करती है. सबसे पहले सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर शुड बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल. जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है उसको लाजमी जिम्मेदार ठहराया जाए, एक तो ये सोच है. Strict liability force manufacturers to keep precautions before making their product. Injured party will be adequately compensated. Manufacturers make a representation of product safety. जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर कंपनी पर आएगी, एक तो सोच ये है. लेकिन इसका नुकसान ये कि फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी इस तरह का एग्रीमेंट साइन करती है तो वो अपनी टीम से बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगी, क्योंकि नुकसान के सूरत में कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है
उसका नुकसान भरेगी। अब कंपनी नुकसान भरेगी तो वो कंपनी ने, ओनर्स ने खुद तो नहीं बनाया, उन्होंने डेवलपर्स से बनाया, तो डेवलपर्स को पेनल्टी पड़ती है, डेवलपर्स के ऊपर जो है वो ये सारे का सारा बोझ आएगा। इस सिनेरियो में फिर जो इनोवेशन है या इसमें जो फ्रीडम ऑफ गुड कोडिंग है वो नहीं रहेगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी will cause an unnecessary burden upon computer software manufacturer. Strict products liability would hinder innovation. अगर आपने उनको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आप वो रिक्वायरमेंट से कुछ बढ़कर आपको देते हैं और आप फिर भी उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो आपको इनोवेशन नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ देंगे जो आपने डिमांड किया है, जो कस्टमर ने डिमांड किया। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी। मोस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अच्छा जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ये भी हमने एक को डिस्कस किया है, वो ये था कि जो लाइबल रखा जाए, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है लाइबल ना रखा जाए। जो पॉइंट है यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही डिस्कस किया हुआ है कि लाइबल रखा जाए, क्यों रखा जाए आप वही ही पेपर में लिखेंगे, लेकिन आप ये जरूर बता देंगे कि दो स्कूल ऑफ थॉट कौन से हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये जो कहते हैं कि जिम्मेदारी डाली जाए, सॉफ्टवेयर की कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी डाली जाए, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है नहीं डाली जाए। यहाँ पे वही पॉइंट्स डिस्कस किए गए जो ये कहते हैं कि डाली जाए क्योंकि ये वजूहत है। अच्छा जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग system safety. Most software engineers are trained to ensure their systems are designed and developed on sound scientific principles. Applying these principles to safety related system means that safety should be made an objective at the first possible opportunity, that is the design stage. जो सेफ्टी रिलेटेड सारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के फेज के अंदर ही उसको ऐसे इमेजिन किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि वो सेफ हो। नथिंग कैन बी मेड इनहेरेंटली सेफ, एंड सो any assessment of the safety of an object or process will depend on balancing a number of factors. This section provides an overview of all the factors which need to be taken into account while developing a secure system. अच्छा जी, hazard analysis. Before finalizing and proceeding further with the design of a safety related application, it is necessary to argue a fully hazard to arrange a full hazard analysis. The reason is the identification of all potential dangerous situations. Such an analysis need to include not only obvious hazard but also the more exclusive dependent hazards which may arise due to unusual combination of circumstances. Example of some techniques of hazard analysis are fault model analysis and fault tree analysis. ये इसका जो फॉल्ट मॉडल और फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, ये बेसिकली आपका एक किस्म का ऑटोमेटा का एनालिसिस है, जहाँ पे आप अपनी स्टेट्स आइडेंटिफाई करते हैं एप्लीकेशन की, और आप हर स्टेट को सेफली ओपन और सेफली क्लोज करते हैं, यानी जो ट्रांजिशन है स्टेट 1 से स्टेट 2 के दरमियान में वो सेफ ट्रांजिशन हो। और आपको अगर कहीं पे भी, बल्कि कहीं पे भी नहीं, हर स्टेट के ऊपर अगर आप ये भी प्रोग्राम करें कि अननोन कंडीशन में कोई भी अननोन कंडीशन आ जाए तो सेफली एग्जिट कैसे करना है, तो वो आपका जो है वो हैजर्ड एनालिसिस का एक हिस्सा है। इसकी एक बहुत कॉमन मिसाल है कि जो लैंग्वेज के अंदर कैपेबिलिटी है ट्राई और कैच की, कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें ट्राई और कैच की फीचर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेजॉरिटी लैंग्वेजेस में ट्राई और कैच का फीचर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ट्राई के अंदर आप वो वाले सारा कोड लिखते हैं जो कि आपको पता है कि ये तो मैंने प्लान किया था, ये रिक्वायरमेंट थी यूजर की, तो ये अगर उसने कहा है तो मैंने प्रोग्राम कर दिया ट्राई में। लेकिन अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आप कैच कर सकते हैं, वो जो कैच है वो फिर आपको सेफली एग्जिट करना है, आप एप्लीकेशन को सेफली क्लोज कर सकते हैं। कुछ फाइलें अगर ओपन हुई हैं तो उनको आप पहले सेव करें फिर आप क्लोज करें। जिस तरह विंडो अगर क्रैश करती है तो वो क्रैश करते वक्त भी उसका जो रैम के अंदर डाटा होता है वो आपकी हार्ड डिस्क पे राइट कर देती है और आपको बता देती है कि मैंने यहाँ पे लिख कर रख दिया। अगर ये एक क्रिटिकल सिस्टम है, लेट्स सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर इस सिस्टम पर चल रहा है और अचानक ये सिस्टम क्रैश कर गया, तो उस क्रैश करने की वजह क्या बनी, वो जो रैम में डाटा था वो हमने हार्ड डिस्क पे राइट कर दिया। आपकी जेन्युइन विंडो है तो आप ये डाटा विंडोज वालों को भेजकर उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। तो जो सेफ एग्जिट की स्ट्रेटजी है वो बड़ी अहम स्ट्रेटजी है। Requirements and specification. Detailing the requirements is the first step toward ensuring that the correct end product is produced. For this to be achieved, it is necessary for the analyst, designer, and implementer to fully understand the nature of the product. In many cases, the user, despite
possessing detailed knowledge of the application will not have sufficient understanding of the precise working of the computer system to appreciate whether it is trustworthy or not. This is also true in this is also true in reverse. The software engineer cannot be expected to be immediately aware of all the subtle shade pertaining to the particular application. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो आपसे रिक्वायरमेंट्स भी सारी ले ले तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसको सब कुछ क्लियर कर दिया है। उसमें जो अननोन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको ढूंढ कर प्रोग्राम नहीं कर सकता। अपनी तरफ से वो कुछ हद तक पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन सारे सिनेरियोज नहीं। One prerequisite, therefore, for the safe design is full and frank discussion between the customer and designer with a view of creating a total understanding regarding both the nature of the product and the required safety performance. जो जो इस तरह के एक्सेप्शंस हैं या इस तरह के सिनेरियोज जहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है, उनको अवॉइड करने के लिए जो एक मेथड है वो फुल एंड फ्रैंक डिस्कशन है। जो डेवलपर है उसकी रिक्वायरमेंट्स, जब वो रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा हो तो वो फीडबैक के ज़रिए यूज़र से इंफॉर्मेशन निकलवाए जो उसको लगता है कि उसको सिनेरियोज, कुछ ऐसे सिनेरियोज के लिए नहीं दी जा रही जिनके अंदर एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। Reliability and safety. Reliability is defined as the probability of performing the intended purpose adequately for the period of time intended under the operating conditions encountered. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो उसी तरह काम करे जो टाइम फ्रेम है, डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। मिसाल तौर पर आप एप्लीकेशन बनवाते हैं, इवन अगर आप ये समझते हैं कि जी एंड्रॉयड हमेशा रहेगा तो एंड्रॉयड क्या पता अगले 20 से 30 सालों तक जिंदा रहे, तो वो इस इंटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्होंने उसको बेहतरीन बनाना है। उसके बाद क्या पता एंड्रॉयड के अंदर से कोई ऐसा वर्जन निकले या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो एंड्रॉयड से बेहतर चीज़ रन कर सके। तो जब तक एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिलायबल होना है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सेफ्टी ऑन द अदर हैंड कैन बी डिफाइंड एज the probability that no accident will occur in a given length of time due to a system failure or malfunction. जो एक्सीडेंट है वो अकर नहीं होगा बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉल्ट। यही वजह है कि जो एंड्रॉयड ऑटो है, गाड़ियों के अंदर भी एंड्रॉयड आता है। एक तो है जो आप बाद में पैनल लगवा लेते हैं, लेकिन अगर आप BMW बाकी और बड़ी कंपनीज की गाड़ियाँ देखें तो उसमें एंड्रॉयड ऑटो इंस्टॉल होता है, लेकिन उसमें ऑटो पायलट नहीं है। और जो गूगल है वो कभी भी ये ऑटो पायलट इंट्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक कि वो 100% या 99.99% श्योर ना हो कि वो उसका वो सॉफ्टवेयर अब तैयार है या रेडी है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास 50 से लेके 58 तक स्लाइड्स रह गई हैं, ये इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। और जो फ्राइडे वाला दिन है उसके अंदर मैं अब आपको क्वेश्चंस रिवाइज करवा दूंगा। जितनी अब तक की हमारी स्लाइड्स हैं उन सारे स्लाइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं स्लाइड्स के अंदर, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको फ्राइडे वाले दिन कवर करवाऊंगा। क्लास आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 50 से 58 तक स्लाइड हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। चलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब सेशन एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुदा न खासा किसी भी मुश्किल वक्त है तो उसको आसान कर दें। आप मुझे, बाकी क्लास वाले, उसको, रिश्तेदारों को ज़रूर अपने दुआ में याद रखें। और ये नाउमीदी जो मुश्किल वक्त है इसमें नाउमीदी एक कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने नाउमीद नहीं होना। मोमिन जो है वो नाउमीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।